ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 134 ਤੇ ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਪੇਰੈਂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਚਿਵਾਲਿਆ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ, ਡੀਓ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्रीकाल जी। हाँ जी ਕੀ ਮੈਟਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ सर, हम लोग कल एजुकेशनल मिनिस्टर के यहाँ गए थे, कंवरपाल सिंह गुर्जर जी के यहाँ पे। तो उन्होंने हमसे कहा था कि आपके बच्चों के एडमिशन कल से शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो जब हम आज वहाँ पे पहुँचे, पहले तो हमने कल ही स्कूलों में राउंड लगाए, तो वहाँ उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है और जब तक हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं आएगी तो हम नहीं करेंगे। तो उसके बाद हम आज मॉर्निंग से 7 o'clock से हम शिक्षा मंत्री के घर पे, तो वहाँ से वो जा चुके थे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो वहाँ से जा चुके थे, और उसके बाद वहाँ से हमें खदेड़ दिया गया। पुलिस वालों ने हमें वहाँ से खदेड़ा। अच्छा। तो फिर हम लोग 10 साढ़े 10 बजे हम लोग यहाँ आ गए, क्योंकि यहाँ पे ये पता चला था कि यहाँ पे मीटिंग होनी है। तो हमने सोचा कि अगर यहाँ मीटिंग होनी है तो हम लोग यहाँ पे जितने भी मिनिस्टर या जितने भी एजुकेशनल मिनिस्टर यहाँ आएंगे उनसे बात करेंगे, जितने भी ऑफिसर्स आएंगे। तो उन ऑफिसर की तरफ से भी हमें जाते टाइम कोई आश्वासन नहीं मिला। अब मॉर्निंग से यहाँ बैठे हैं तो 5 बजे जब यहाँ से डीओ सर निकलते हैं तो वो क्या कहते हैं कि आपका काम मंडे को होगा। तो मंडे तक फिर लटका था। यस, मंडे को फिर उन्होंने बोल दिया। इसके बाद हम यहाँ पे तब से बैठे हैं, तो हमने सोचा हम धरना देंगे। लेकिन उसके बाद फिर बीच में मीन्स कुछ मीडिया हमसे जुड़ी, उन्होंने हमसे कहा कि नहीं, जाके एडीएस मैम से मिलो, ऊपर कोई मैम है। तो हम उनसे मिले, उन्होंने हमें आश्वासन तो दिया है, वेडनेसडे तक का बोल दिया है। वो मंडे था, ये वेडनेसडे। आपको पता है सर, ये मीठी गोली है और वो हमें दी जा रही है, लेकिन अब हम चबाने के हक में नहीं है उनको। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 134 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਲੋਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ? 85% ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। 100% ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, 3rd ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਰਿਹਾ ਨਾ। स्कूल वालों ने टीसी मांगे, हमने स्कूल से टीसी कटवा दिए, हमारे बच्चे ना इधर का रहा ना उधर का। टीसी भी कटवा दे दिया। स्कूल वालों ने क्या हुई है? स्कूल वालों ने बोला था टीसी लाओ, हम अभी एडमिशन लेते हैं। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ उस ਹੋਈ। तो बाद अब कह रहे हैं ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਮ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਣਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਡੀਓ ਆਫਿਸ ਸਰ ਅਸੀਂ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ, ਕਦੀ ਡੀਓ ਆਫਿਸ, ਕਦੀ ਬੀਓ ਆਫਿਸ, ਕਦੀ ਡੀਡਬਲਿਊ ਆਫਿਸ। ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਬਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਐਡੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਰ। हम मुस्ताबाद तो ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸਤਫਾ। हाँ हाँ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। 22 किलोमीटर आना, 22 किलोमीटर जाना, 16 तरीक का भेज देते हैं। स्कूल की पढ़ाई सर, करा हरियाणा गवर्नमेंट से ना एक रिक्वेस्ट है। ये नहीं है कि हम लोग बहुत परेशान हैं, हम तो 16 मीन्स कम से कम आज 20 दिन हो रहे होंगे, हम तो परेशान हैं ही। लेकिन कम से कम जो ये आश्वासन दे रहे हैं ना, या तो अपनी बात पे अड़िग हो जाए या हमें मना कर दे, या फिर पास से गाला लग गया ना, ना इधर दे, ना आप उधर दे। इक्वालिटी लेके आ जाओ कि हाँ, हर स्कूल में आपका बच्चा पढ़ेगा, एक जैसी फीसें होंगी, आपके बच्चों को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। और अगर इतनी कमजोर सरकार है, अगर इतनी कमजोर सरकार है ना सर, तो ऐसे से वो ना स्कीमें ना निकाले, क्योंकि पता क्या, हम लोग हैं भोले लोग, मेहनत तो हम बहुत करते बच्चा केडी हैं। क्लास पढ़ता है? 4th में है सर। यस, एसडी पब्लिक स्कूल अलॉट हुआ है उसको, और हम लोगों को सबसे ज्यादा धक्के खाने पड़ रहे हैं। इवन सारे पेरेंट्स, हम लोग कंटिन्यूसली साथ में हैं, एक दिन भी हम लोग घर में नहीं बैठे। ग्रुप तो और मजबूत हुआ है जब स्कूल वालों से कॉन्टेक्ट किया जाता है, वो एक ही बात बताते हैं कि आपके कागजों की इंक्वायरी चल रही है। वो ये हमें ये नहीं समझाते इंक्वायरी उनकी कब पूरी होगी।
16 तारीख से आज 7 तारीख हो चुकी है। 7 तारीख आज लास्ट थी, सीएम जी का बयान था भी 7 तारीख लास्ट है, 7 तारीख तक कोई समाधान निकले, पर आज भी कोई समाधान नहीं हुआ। हम सुबह से यहाँ पर बैठे हैं, सुबह से 7 बजे से हम घर से निकले और सुबह का हमने कुछ नहीं खाया पिया। हमें सब पास से बस कोई आश्वासन नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो एसडीएम की तरफ से हो, चाहे बीओ की तरफ से हो, चाहे जीओ की तरफ से हो। हो गई है और अगले महीने तो फाइनल टर्म है, बच्चा तो फेल हो ही जाएगा फाइनल सिलेबस है टर्म। और सिलेबस ही अगर देखा जाए ना तो स्कूल वालों की तरफ से धमकाया भी जाता है कि वे वो फर्स्ट टाइम कैसे, बिकॉज वो क्या कहते हैं, चलो हम आपके बच्चे का एडमिशन कर भी लेते हैं और अगर आपका बच्चा क्लियर नहीं कर पाया तो क्या है, इससे बेटर क्या है, आप नेक्स्ट ईयर या कभी और कभी देखना, तब एडमिशन लेना, अब अपने बच्चों को घर ले इनडायरेक्ट वे ना थानू एक मैसेज दे रहे जाओ। डीपीएस स्कूल वाले भी यही कह रहे हैं कि आपके बच्चों का एक टेस्ट होगा, यदि वो क्लियर करेंगे तब हम उनको एडमिशन देंगे, वरना देंगे नहीं। और डीपीएस वाले हमें मिलने भी नहीं आते खुद, उनकी जो से सिक्योरिटी गार्ड है वो वहीं से हमारे से फॉर्म लेते हैं और हमें भेज देते हैं, वो हमारे से खुद नहीं मैं मुलाकात सिर्फ करते। आपके माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ, हैरानी की बात है, ये भगत सिंह का देश है, भगत सिंह का देश है जिसने पब्लिक के लिए एक जलियांवाला हल्का सा कांड देखा था और अपने आप को शहीद कर दिया था। और एक आज हमारे मिनिस्टर है, उनकी वजह से बन के बैठे हैं। भगत सिंह का नाम तो नहीं रहा क्योंकि वो तो अच्छों में आते हैं। अब हम जो एजुकेशन में मुर्दाबाद ये नारे लगा के धरना देके अपने बच्चों का भविष्य सुधार रहे हैं और क्या बोलते हैं कि अगर शिक्षा होगी तो विकास होगा। अब ये हो जाएगा, अगर शिक्षा मिलेगी भी ना तो शायद सभी बच्चों का विकास ही हो रहा है, विकास तो नहीं हो रहा है। बच्चों का हम करेंगे और अच्छा हमारे बता देते बच्चे हैं। तो ਤੁਸੀਂ बहुत ਐਡ परेशान हैं। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हम यही कहते हैं ये सरकार की पॉलिसी है। आज तो हम एडीएस की वजह से मे बी सम पेरेंट्स नॉट एग्री विद मी कि शायद नहीं एग्री होंगे, लेकिन मैं अपने हर पेरेंट्स से कहूँगी अगर ये चाहते हैं धरना देना तो वी आर और यहाँ पे हम बैठेंगे। और अगर ये जाना चाहते हैं वेडनेसडे तक का वेट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो मीटिंग हुई है हमारी एडीएस से तो उन्होंने तो एक बड़ी अच्छी सी एक बात बोली है, कहते मेरी तो जानकारी में ये बात है ही नहीं कि पेरेंट्स 11 बजे से नीचे बैठे हैं और उनकी जानकारी में ये भी नहीं है कि 134 का कोई पेपर भी है और उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हमने क्वेश्चन पुट किया कि ये आप सामने न्यूज़ चल रहा है कि मैम आपने तो न्यूज़ में देखा होगा, कहते हाँ इसमें तो मैं देखती रहती हूँ, लेकिन फिर भी आप भरोसा रखो, मैं भरोसा रखो और मैं वेडनेसडे तक कुछ हमारी ना लास्ट कुछ में करूंगी। सरकार से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों को एडमिशन दिया जाए। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते, ना हमने कुछ करना है। बस जो हमारा हक है वो हमें चाहिए। हमारे बच्चे क्वालिफाई हैं, वो क्वालिफाई करके आए तभी स्कूल अलॉट हुए हैं, सरकार की तरफ से उनको स्कूल अलॉट हुए हैं, तो उन स्कूलों में उनको एडमिशन दिलाया जाए। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ 134 ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। इसी वार्ता में विश्राम का धन्यवाद। पत्रकार सरदार गुरजीत सिंह, कैमरामैन मुकेश दिनों।